people are not able to differentiate between saving and investment. Hmm. Like you have explained, I think it would be clear to our audience now what exactly is the difference between saving and investment. In India, most of the people I have seen, like youngsters like me, we do not tend to save money. Like I realized it after working for 3 years or more that I should. And people of my age, like I'm in college and I see people are not at all interested in saving the money. They just like spending the money. So if such kind of people want to make money in long term, they have to save and invest. What is your opinion? Like how should they start doing it? How should they start saving and investing? Because it's really difficult. आज हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिन्होंने फाइनेंशियल दुनिया में 2 डेकेड से भरोसे की मिसाल कायम की है। मिस्टर अचिंत जैन, एमबीए इन फाइनेंस और सीएफजीपी चार्टर के साथ इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे जायंट्स में काम किया है और आज एक सफल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म एजी फाइनेंशियल के फाउंडर के तौर पर कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एडवाइजरी तक सीमित नहीं है, ये फाइनेंस को डीमिस्टिफाई भी करते हैं। कॉर्पोरेट्स के लिए वर्कशॉप से लेकर फाइनेंशियल लिटरेसी को एम्पावर भी करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली प्लान करना तो इस एपिसोड को मिस मत करिएगा। सो हाय मिस्टर अचिंत, हाउ आर यू? Very good, thank you. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you very much. So shall we start? Surely. Okay. So today we would be discussing, about basics of investment and all. Like we would like to know, the basic things. Like for example, agar India mein someone is going to do, investment and wants to make money through this, then like what terms should that person be knowing and all? So should we start? Surely. So, see, before we start, Yeah. I think the very basic of finance is जब आप पैसा कमाते हो Yeah. तो यूजुअली उसकी 4 दशाएं होती हैं. There are 4 ways of dealing with money. Okay. First is you spend it, which Yeah. is your expense, Yeah. जिसको आप खर्च कर देते हो. Yes. Next is your saving, Yeah. जिसको हम धन संचय बोलते हैं. Third is investment, Okay. which is निवेश in Hindi. Yes. And then the fourth one is उसका नाश, loss, नुकसान, Loss. Okay. खो दिया. तो ये 4 दशाएं होती हैं basically, Hmm. right? So first one is expense, Hmm. savings, investments, and then Hmm. It got lost, right? Yeah. So whenever you're earning money, Yeah. आप जब भी पैसे को सेव कर रहे हो, आप एक उस दिन के लिए अपने उस पैसे को आपने बचा लिया जिस दिन आप काम नहीं करोगे और उस दिन वो पैसा आपको काम आएगा. Required होगा. This is saving. Yes. But when you expand it, when you want to expand it, Yes. जब आप चाहते हो कि वो पैसा आपको कई दिनों तक ऐसे हेल्प करे जब आप काम ना करें और आपको वो पैसा काम आए, Right. तो आपको उस पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा, which is called Right. investing. You should be Okay. putting that money to work, Okay. right? So that it is helping you on the days when you're not working or when you're Mhm. not able to work, that money is Right. coming and helping you, Yeah. right? So that is what is known as investing, Investment. and that is precisely what passive income is about, Passive right? income. Right. सो उसके बाद में सो वेल्थ क्रिएशन की जब हम बात Hmm. करते हैं, व्हेन यू स्पीक अबाउट वेल्थ क्रिएशन, व्हेन यू स्पीक अबाउट वेरी बेसिक्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, Hmm. इट स्टार्ट्स विद फर्स्ट सेविंग्स Hmm. एंड देन इट गोज टू इन्वेस्टिंग. Okay. सो जब भी हम इन्वेस्टिंग करेंगे, Hmm. इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, Hmm. तो हम हमारे पैसे से ही Hmm. नया पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Hmm. हम उस पैसे को सही तरीके से स्मार्टली काम पर लगा रहे हैं ताकि उससे मुझे आगे जाकर कुछ ऐसे नए दिन मैं कमा सकूं उस पैसे से जब मुझे काम ना करना पड़े. People are not able to differentiate between saving and investment. Hmm. Like you have explained, I think it would be clear to our audience now what exactly is the difference between saving and investment. In India, most of the people I have seen, like youngsters like me, we do not tend to save money. Hmm. Like I realized it after working for 3 years or more that I should start SIPs and all. But people of my age, I'm 20 years old, and people of my age, like I'm in college and I see people are not at all interested in saving the money. They just like spending the money. Hmm. So if such kind of people want to make money in long term, they have to save and invest. What is your opinion? Like how should they start doing it? How should they start saving and investing? Because it's really difficult,
people get influenced by the social media and all. They are going to, big restaurants to dine in, and they are not, inclined towards saving these days. So what is your, message to them and your opinion that how should they start? For a 20-year-old person, Yeah. or people who are students right now, Yeah. they may not be really interested in saving क्योंकि वो खुद कमा नहीं रहे हैं अभी. Yeah, right. But I believe the day you start earning yourself, right, you would be inclined towards saving. Yeah. Right. And even when you're not earning, Hmm. you should be having a habit of saving. of at least saving 20%. Because 10%. I started earning like 2.5 years back. Before that, I used to get money from my mummy and papa. So still I used to save some amount out of it कि बाद में काम में आएगा. But some people don't do even that. So Correct. I think there should be a habit between them. There definitely should be a habit of saving. Saving का सबसे basic, अगर आपको एक तैयारी करनी है कि मैं किस तरीके से सेव करूं, तो सबसे पहले the day you get your money in hand, right, and if you are suffering from the habit of spending it all, right, then जिस दिन पैसा मिला 20% का टारगेट रखो, 20% पैसा निकाल के कोने में रख दो और उसको या तो आप इन्वेस्ट कर दो या फिर ऐसी जगह डाल दो जहां पर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो उसको, बहुत इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहे हो. लेट्स से सबसे सिंपल है कि आप किसी ऐसे अकाउंट में डाल दीजिए जिसका डेबिट कार्ड ही नहीं है आपके पास, यूपीआई ही नहीं है, तो उसमें खर्च ही नहीं होगा, सीधे डिपॉजिट हो गया. 2000 रुपए मिले, 20% 2000 रुपए का 400 रुपए हो गया, तो आपने 400 रुपए लेके उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, सीधा 400 रुपए बच गए. राइट. पहली चीज तो ये हो गई. अदरवाइज द नेक्स्ट थिंग इज यू इन्वेस्टेड, और आप जैसे ही उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू को आई थिंक द मोस्ट बेसिक थिंग्स ऑफ इन्वेस्टिंग इज आपने एक म्यूचुअल फंड ले लिया, राइट, इन्वेस्ट इन अ गुड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड, और उसमें पैसा डाल दिया, फिर उसको निकालो मत, और ऐसा डालो कि फिर आपको ऐप से एक्सेस करके रिडीम ना कर पाओ उसको. So this again is a very good strategy to just put in. Otherwise सीधे FD कर दो. Okay. Whenever you're doing such things, आपने कभी इन्वेस्ट कर दिया उसको या किसी ऐसी जगह डाल दिया जब आपको एफर्ट डालना पड़ेगा ना उस पैसे को निकालने के लिए, तो योर ब्रेन विल सॉर्ट ऑफ रेजिस्ट कि आप ना करो ये चीज, इससे बेटर है कि किसी और तरीके से निकाल लो. So that way you end up saving, है ना, and you will end up accumulating some money. I myself have experienced the same. So like this was about youngsters. Now if you want to give a message or suggestion to more like people in their 20s, 30s, 40s related to the same, what would you say? So for the young earners, especially जो early 20s में है, mid 20s में है, उनके लिए भी strategy same ही रहेगी, right now, because they're earning right now. They should definitely try and save that money. Keep a target for themselves कि at least 40%, 30% पैसा तो सेव हो महीने का. और सेव होके कहाँ जाए? सेव होके या तो आप उसको लॉक कर दो एक एफडी में, राइट, जो कि एक इमरजेंसी का कॉर्पस बन जाएगा आपका. उसके बाद आप you can get into investing into the capital markets through mutual funds or through whichever way you wish to, right, तो वहाँ पे कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है मेरे ऊपर, तो एक आप टारगेट रख लीजिए अपने लिए कि ओके मेरे को मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी कितनी आ सकती है. लेट्स से 5 लाख रुपए की या 4 लाख रुपए की मेरे ऊपर मैक्सिमम लायबिलिटी आ सकती है. उतना पैसा धीरे धीरे करके हम लोगों ने एक एफडी में इकट्ठा कर लिया ताकि वो इजीली लिक्विडेटेबल हो. खाते में छोड़ेंगे तो चला जाएगा. सी मनी इज लाइक वाटर, राइट, इट विल सेटल डाउन एट द सेफ हेवंस, राइट. वो it will slip through the cracks, it will leak out, it will evaporate अगर आप उसको काम पर नहीं लगाओगे, right. So and human brain is wired in a way कि आपको पैसा दिखेगा ना अगर अकाउंट में, तो your brain will automatically start thinking of ways of spending that money. So your brain will actually search for emergencies to spend it, right. So suddenly what will happen is you will suddenly start seeing कि अरे यार ये घर का ये वाला कोना बहुत खाली पड़ा हुआ है, let's do something. सारी सेल्स दिखेंगे आपको, all your shopping apps will suddenly start wooing you, spending that money. तो जब तक खाते में पैसा रहेगा, अकाउंट में पैसा रहेगा, तब तक things are going to be difficult, you'll not be able to save. So उसको I usually say कि इस पॉकेट से निकाल कर दूसरे पॉकेट में डालो, उसको जिप कर दो, right. So put that money maybe in a FD or म्यूचुअल फंड्स में भी डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सो विच आर वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो जहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं होता है. जैसे एफडी में आप करते हैं तो वहाँ पर मिनिमम टेन्योर आपको डिफाइन करना होता है और उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और उसके हिसाब से आपका
एक एग्जिट पेनल्टी लगती है अगर उस समय के पहले आपने निकाल लिया तो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं। और आपका इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर आपको भेदभाव नहीं करते हो। आपका जितना आपका एनुअल यील्ड बनता है उसके हिसाब से उतने दिन का आपको रिटर्न मिल जाता है, आपके NAVs में कैलकुलेट हो जाता है। सो दैट अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फ्रीली लिक्विडेटेबल। तो इस तरीके से आप इनको इमरजेंसी के लिए लगा लिए। तो ये हो गया इमरजेंसी वाला एस्पेक्ट। इसके बाद वंस यू फिल दैट बकेट ऑफ इमरजेंसी, राइट, अब आपने बोला कि हाँ अब हो गया है, फिर और ज्यादा उसमें मत करिए। देन यू लुक एट इन्वेस्टिंग फॉर योर फ्यूचर। राइट, आप क्या 60 साल तक काम करना चाहोगे? Perhaps no. Most of the people that I meet with, especially the young earners, most of them do not want to work till the age of 60. Most of them would want to work maybe till 40, mid 40s. right. And आजकल तो पता नहीं जिस तरीके से disruptions आ रहे हैं, किसका जॉब आगे रहेगा या नहीं रहेगा. Because of AI and all, Precisely. the world is changing. Correct. So I think hence it's important, जब तक आप पैसा कमा रहे हो तब तक उसको इकट्ठा करते जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ सही तरीके से. So when it comes to investing, you should be looking at investing into instruments which are more growth oriented. Growth oriented मतलब जो कि businesses से linked हो, क्योंकि businesses grow हो रहे हैं, and businesses grow होंगे, right? So आप businesses में invest करिए. Businesses में invest करने का सबसे simple तरीका होता है that you get into the equity capital markets में equity side पर आकर invest करिए. So you can get into direct equity investing if you have to. You can get into investing through mutual funds. Equity mutual funds होते हैं, which is a smarter way of investing, क्योंकि आप अपना पैसा एक अच्छे एडवाइजर के थ्रू, फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं. एक एडवाइजर आपका रिक्वायरमेंट को पूरे क्लियरली समझेगा कि आपके गोल्स क्या हैं जीवन के, आप कितने रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, और उसके अनुसार आपका पूरा पैसा कितने होराइजन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और फिर जस्ट स्टिक टू दैट. सो ही विल डिजाइन अ पोर्टफोलियो फॉर यू एंड देन यू कैन गो अबाउट इन्वेस्टिंग. सो ये अपना लॉन्ग टर्म के लिए हो गया. तो शॉर्ट टर्म वाला बकेट हुआ, लॉन्ग टर्म वाला बकेट हुआ. शॉर्ट टर्म वाला बकेट जैसे ही आपको यूटिलाइज करना हुआ, फिनिश हुआ, वापस से उसको फिल कर दिया. सो उसमें एक अपना मिनिमम वैल्यू रखिए कि उतना मेरे को मेंटेन करके चलना ही है. कभी भी कोई सडन हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, सडन ट्रैवल हो गया, इमरजेंसी किसी भी रूप में आ सकती है, तो उसके लिए हमने वो करा. उसके बाद में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स को. सो इससे क्या होगा, आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स कभी हैम्पर नहीं होंगे. अगर आप शॉर्ट टर्म बना के रखोगे तो लॉन्ग टर्म का बकेट कभी हैम्पर नहीं होगा. अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म का बकेट नहीं बनाओगे तो आपने इन्वेस्ट करना था लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, और आप उस पे जाकर निकाल लोगे, तो दैट इज वेयर the overall compounding machine which was to work on that money will get disturbed. Okay. The long-term wealth creation process in India is, difficult to do because, there are way too many expenses to handle in India. Ab jaise suppose someone is not from Delhi and he or she, like a partner is living over here and working. They have to pay their rent, and if they are going to have kids, तो उनका admission का खर्चा and all the school fees and stuff, then they have their own expensive traveling का expense and all whatever. So is it difficult in India to save money? See, again, ये बहुत case specific है ये question. Depends on obviously on the kind of money that you're making, right? अगर आप बहुत पैसा बना रहे हैं तो भी मैंने देखा है लोगों के लिए डिफिकल्टी होती है. अगर आप बहुत कम पैसा बना रहे हैं तो भी मैंने देखा है लोग अच्छा पैसा बचा लेते हैं. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एक्सपेंसेस दैट यू हैव, राइट. सो अगेन, आपके क्या एक्सपेंसेस हैं इसके बेस्ट जज आप ही होंगे. तो अगर आपको लग रहा है तो इसके लिए एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है मेरे पास. आप क्या करा करो, अपने महीने के सारे एक्सपेंसेस जॉट डाउन कर लो, राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, फ्रॉम द डे यू रिसीव्ड योर सैलरी, उस दिन से लेके अगली सैलरी आने तक जो जो खर्चे हो रहे हैं सब लोड कर लीजिए, एक रुपए का खर्चा, राइट. एंड देन सिट डाउन एट द एंड ऑफ द मंथ एंड देन डिसाइड कि इसमें से कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो नेसेसरी थे और इम्पोर्टेंट थे. ओके. इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कौन कौन से खर्चे अननेसेसरी थे, जिनको करने की आवश्यकता नहीं थी, राइट. बहुत सारे ऐसे सब्सक्रिप्शंस होते हैं जहाँ पे पैसा चला जाता है, बहुत सारे ऐसे फिजूल खर्ची भी होती है, राइट. तो वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे.
उसमें से क्या मैं रिड्यूस कर सकता हूँ विदाउट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई लाइफस्टाइल, क्या उसमें से मैं रिड्यूस कर सकता हूँ अपने खर्चों को? तो जब आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो, you will be able to accumulate some portion or maybe mark some portion of that expenses जो आपको लगता है कि फिजूल है, उनको फिर आपको deliberately stop करना चाहिए और उस पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए towards investing. So these are very interesting questions. जो आप पूछ रहे हो ना, ये बहुत practical questions हैं, and I think इस तरीके से आप इसको approach कर सकते हो. So this is what financial planning is, So this is expense planning. Okay, this is expense. This is expense planning. And then what would be financial planning? See, financial planning एक बहुत ही बड़ा term है, right? It actually encompasses a lot of activities in it. So financial planning would start planning for your finances in terms of आपकी कितने income आ रही है, कितने खर्चे हैं, and it would also contain in it investing. Okay. तो आपको कितना सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है आपके. अब उसके जब हम इन पे बातें करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे क्या गोल्स हैं, कितने समय तक हमारे पैसे की रिक्वायरमेंट हमको नहीं पड़ने वाली है. तो जितने समय तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तब तक के हिसाब से हम लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें. सो दिस इज एक्चुअली हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी अप्रोच्ड. एंड इट डजंट जस्ट स्टॉप देयर. आपने जब इन्वेस्ट कर दिया तो उसको मॉनिटर करना और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उनको चेंज करना. Obviously through if you don't understand these things तो आपको professional advice लेना चाहिए, because there will be situations where you may not be able to understand. It's a very sophisticated discipline in itself, right? Investing is a discipline in itself. ये एक पूरा profession है अपने आप में, तो ये part time नहीं हो सकता. आप अगर part time खुद से करना चाहते हो तो बहुत ही ordinary तरीके से आप कर पाओगे, right? And I think एक ऐसी चीज जो कि वेल्थ मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल प्लानिंग है या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है जिसपे आपकी जिंदगी डिपेंडेंट है, आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है, उसके साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, राइट? है ना? सो यू शुड डेफिनेटली हैव सम प्रोफेशनल गाइडेंस इन इट, राइट, रादर देन ट्राइंग टू डू इट योरसेल्फ एंड देन लेटर टू रियलाइज कि ओ आई स्क्रूड अप इन इट, है ना? सो समय निकल जाता है और अगेन समय जो छूट जाता है कंपाउंडिंग में, एक एक साल, दो साल, तीन साल भी जो आगे जाकर आपको आते हैं, मैग्नीफाई करते हैं आपके वेल्थ को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो एक दो साल भी छोड़ना नहीं चाहिए. इसलिए समटाइम्स पीपल फील अ लिटिल वरिड, not really worried. Sometimes people are very cost sensitive. कि अरे नहीं, एडवाइजर के पास जाएंगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, क्यों? पर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ये नहीं सोचते, लॉयर के पास जाते हो ये नहीं सोचते, राइट? पर जहाँ आपके फ्यूचर की बात है, राइट, बिकॉज आप 2-4 साल भी कम कर दिया तो आपने अच्छा खासा कैपिटल अपना लूज कर दिया, राइट? सो वहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं सोचना चाहिए. इट्स अ वेरी fractional amount of cost that you are actually paying to an advisor, and by that cost you're ensuring a lot of peace of mind. You can focus on what you're good at, right? तो इस तरीके से आपको एक अच्छे एडवाइजर को आइडेंटिफाई कर उसके साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए. So you recently used that term compounding again and again. So what do you exactly mean by that term? कंपाउंडिंग का बहुत सिंपल मतलब ये होता है कि मेरा जो पैसा मैंने काम पर लगाया है, उससे जो पैसा मैं कमा रहा हूँ वो भी मेरा कैपिटल बन जाता है, और वो भी दोगुने फोर्स से काम करता है, तिगुने फोर्स से काम करता है, चौगुने फोर्स से काम करता है, 10 गुना फोर्स से काम करता है. एक एक पाई जो मेरी लगी हुई है, निवेशित है, इन्वेस्टेड है, एवरी सिंगल पेनी ऑफ माय मनी is actually working and multiplying and is acting as a capital in itself. That is how compound interest works. Right? That is how compounding works. So compounding is a beautiful philosophy, not a philosophy actually, it's a beautiful method of creating wealth, right? So आपका जो भी पैसा आप लगा रहे हो, right, so उसको हमें, अगर हम बहुत लंबे समय तक निवेश कर रहे हैं उस पैसे को, तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट का अच्छा इम्पैक्ट आता है. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे अगर मेरा पैसा आज मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया है, right, and I've invested this 1 crore rupee for a period of say 5 years, है ना? और वो 1 करोड़ रुपया 14% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रहा है, 14%, राइट? तो 1 करोड़ रुपया
14% पे 5 सालों में 2 करोड़ रुपया हो जाता है। ओके। 10 सालों में करीब करीब 4 करोड़ रुपया हो जाता है। हम्म 15 सालों में 7 करोड़ रुपया हो जाता है। 20 सालों में 14 करोड़ रुपया हो जाता है। 25 सालों में 26 करोड़ रुपया हो जाता है। और 30 सालों में वो जो 1 करोड़ लगाया था मैंने 30वें वर्ष में 14% के रेट पर वो 51 करोड़ रुपया हो जाता है। 30 इयर्स में 51 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है 30 इयर्स में। बट 5 इयर्स में सिर्फ 2 गुना हुआ था। 10 इयर्स में सिर्फ 4 गुना हुआ था। राइट। सो 4 गुना अगर 10 साल में हो रहा है तो 30 वर्षों में उसको 12 गुना होना चाहिए था, पर यहाँ पर 51 गुना हो जाता है। क्योंकि every single rupee that I invested and it grew is actually multiplying and acting as a capital in itself, right? तो सारा पैसा जो मेरा लगा हुआ है वो सारा पैसा इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। सो कंपाउंडिंग एक्चुअली आप देखेंगे कि शुरुआत में कुछ दिखती नहीं है, राइट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से 10 इयर्स 15 इयर्स 15-20 सालों के आसपास आपको अच्छा जो कैपिटल में मैग्निफिकेशन दिखना शुरू होता है। दैट इज एग्जैक्टली हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, दैट इज व्हाट कंपाउंडिंग इज अबाउट, राइट। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन, one of the most geniuses, one of the most celebrated brains on the planet, once said that compound interest is the 8th wonder of the world. The one who understands it earns it, the one who doesn't pays it, right? तो इसका सिंपल मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जितने भी फाइनेंस रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं, इंटरेस्ट रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे मेजरली चलते हैं, राइट। तो अगर आप जो लोन ले रहे हो किसी भी प्रकार का तो वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रहा है। तो बेटर यू अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट देन पे कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आप एक एक पैसा जो अपना काम पर लगा रहे हो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कमा कर दे रहा है, और आप एक एक पैसा जो ले रहे हो किसी से वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो आप बाहर किसी को दे रहे हो, राइट। सो दैट इज हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज दैट आप एक बहुत छोटे कैपिटल से भी लंबे समय तक अगर आप इस गेम में रहते हो तो बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हो थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट। बट दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? फॉर लॉन्ग टर्म। सी इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म, वो सब लॉन्ग टर्म के ही होते हैं। आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत ही सेफ साइड पे रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, शुड कंसिडर इट एज सेविंग्स। शॉर्ट टर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट जैसा होता नहीं है अगर आप सही तरीके से करना चाहते हो, है ना। अदरवाइज तो मतलब यू विल बी, आप मतलब दिल को बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है। ऐसा है कि अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट टर्म के लिए मैंने लगा दिया तो नहीं, आपका कम से कम 3, 5, 8, 10 साल का होराइजन तो होना ही चाहिए मिनिमम। अगर आप even if you want to get into minimum amount of horizon, कम से कम 3 से 5 साल का होराइजन तो रहना ही चाहिए। पर उसमें भी आपका जब कैपिटल कम रिस्क पे और उस समय भी होना चाहिए। ओके, सो लाइक what do you think if someone wants to invest or start saving? So what's the better option? There are multiple options available. Say for example we have mutual funds and we have some people buy shares. So what's better? What's better, what's not better is a perspective. Okay, right? But let's just judge all these instruments. So आपने shares versus mutual funds की बात करी। तो शेयर्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो इट्स नॉट वन वर्सेस द अदर, इट इज हाउ शुड आई गो इन, व्हाट शुड बी माय अप्रोच। सो इफ आई एम एक्चुअली गोइंग एंड इन्वेस्टिंग इन एन इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर मुझे कम रिस्क में ठीक ठाक रिटर्न बना लेना है, राइट। कम रिस्क इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही क्यूरेटेड पोर्टफोलियो है, राइट, एक प्रॉपर्ली मैनेज्ड पोर्टफोलियो है, तो मुझे म्यूचुअल फंड के लिए जाना चाहिए जहाँ पर मैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मेरा एक्सपीरियंस बेटर होगा, राइट। पर अगर मेरी क्षमता है कि मैं लॉस को अच्छे से ले सकूं, लॉस को अच्छे से अपने साथ मतलब आई एम ओके विथ लॉसेस, राइट, आई डोंट हैव स्लीप इश्यूज विथ लॉसेस, राइट, देन मैं डायरेक्ट इक्विटी में भी जा सकता हूँ। और मैं रिस्क लेने की अगर मेरी क्षमता बेटर है तो मुझे डायरेक्ट इक्विटी के शेयर्स भी लगा देने चाहिए। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लेट्स से म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड
बहुत ही सिंपली पुट एक ऐसा बास्केट है जो कि एक फंड मैनेजर को आपने पैसा उठाकर दे दिया सारा अपना, और वो आपका पैसा मैनेज करने की जिम्मेदारी ले लेता है। Okay. इस बीच में अगर आप एक एडवाइजर को रखते हैं तो एक एडवाइजर विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड यू। फंड मैनेजर आके आपके लिए प्लानिंग नहीं कर रहा है, Okay. एडवाइजर आपके लिए प्लानिंग करता है, राइट। सो एक एडवाइजर आपने बीच में रखा जो आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस को बेटर समझता है, आपके रिस्क एपेटाइट को बेटर समझता है। आफ्टर दोस डिस्कशंस आप किस गोल के लिए, किस लक्ष्य के लिए उस पैसे को निवेश कर रहे हैं, कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो एक जो आपके लायक कोई इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड का, वो उसको आपको आइडेंटिफाई करके बोल दे कि सर आप या मैम आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ये आपके गोल्स को पूरा कर देगा इतने समय में। तो ये आपका म्यूचुअल फंड हो गया। अब उसके बाद फंड मैनेजर की जिम्मेदारी है और उस एडवाइजर की जिम्मेदारी है कि वो पैसा आपका किस तरीके से जाएगा। अगर एक एडवाइजर को लगता है कि नहीं ये चीज़ अब सही नहीं चल रही है, राइट, या अब इसमें से निकल जाना चाहिए, तो an advisor will be in a position to take a call that whether he should exit out your positions or not. Okay. Right. Similarly, लेकिन जब हम डायरेक्ट इक्विटी साइड में आते हैं तो डायरेक्ट इक्विटी साइड में जब आप जाते हो तो आपकी रिस्क ज़्यादा हो जाती है। रिस्क इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है, राइट। तो एक आम इंसान के लिए जो कि 9 to 6, 9 to 7 जॉब कर रहा है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाना कि किस बाज़ार में क्या चल रहा है, मार्केट पैरामीटर्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, क्या खबरें आ रही हैं, क्या इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, जियोपॉलिटिकली किस तरीके से चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं और उसका मेरे पोर्टफोलियो पे या मेरे शेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये एक आम आदमी के लिए शायद अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती और इतना टाइम भी नहीं है उसके पास में। तो इस केस में अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप लगा सको, जैसे मैंने बोला था, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम बिजनेस, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम गेम, इट्स अ फुल टाइम गेम, राइट। सो यू हैव टू बी कंप्लीटली क्लूड टू इट। तो इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। तो अगर आपके पास समय नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, टाइम नहीं है ये चीज़ें करने का, तो सबसे बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल को दे दो ये पैसा, वो मैनेज करेगा और आपको ठीक ठाक रिटर्न निकाल कर दे देगा। और हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न का लालच नहीं करना है अपना, मतलब लोग बाग यूजुअली ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में कई ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर उनको नहीं जाना चाहिए और फिर वहाँ से नुकसान करके अपने हाथ जलाकर वापस आते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स का लालच ना करें। हिस्टोरिकली हिंदुस्तान में पिछले 15 वर्षों में अगर मैं ब्रॉडर इंडाइसेस की बात करूँ, निफ्टी सेंसेक्स की, तो 16-17% का एक एवरेज पिछले 15 साल का एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा है कैगर बेसिस पे। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम से कम 13-14% अगर मैं अगले 10-15 साल तक निवेशित हूँ हिंदुस्तान में, इंडियन बिजनेसेस में, तो इस तरीके का रिटर्न निकलना पॉसिबल है। आप आ सकते हैं उनमें, हालांकि ये कोई गारंटी नहीं होती है यहाँ पर, बट यू कैन मेक इट्स अ गुड बेस अजम्पशन टू वर्क विथ कि एक 13-14% के आसपास का रिटर्न तो मिनिमम निकल आएगा। और फिर उसके बाद में फंड मैनेजर का जो एक्सेलेंस है, आपके पोर्टफोलियो का जो एक्सेलेंस है, उसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस बन जाता है अच्छा। Okay. So like I have seen people nowadays are investing, in gold. ज़्यादातर आई थिंक पुराने टाइम से ही चल रहा है, लोग गोल्ड को एज इन्वेस्टमेंट ही देखते हैं कहीं ना कहीं. And there's something like gold ETF also. Someone in my office few days back suggested me to put money in it. I don't know what it is. So please, describe it. What exactly is it? And should people consider investing in it or not? See again, should people consider investing in it or not? ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ये आपका एडवाइजर या आपका फाइनेंशियल प्लानर जो है, he will be in a better position to tell after looking at your entire portfolio. But gold as an investment instrument is a great hedge against market volatilities. Market volatilities इसलिए क्योंकि gold एक ऐसा, again if I speak about Ray Dalio एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टमेंट ऑथर हैं, फाइनेंशियल ऑथर हैं, तो वो कहते हैं कि for somebody who says that gold is not a great investment instrument or gold should be avoided, doesn't probably know about the 5,000-year-old human history, right? तो पिछले 5,000 सालों से 5,000 सालों या 10,000 सालों से लड़ाई तो सोने की चल रही है और ज़मीन की चल रही है। अच्छा, है ना? आज भी जो देश लड़ रहे हैं ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं,
या फिर सोने के लिए लड़ रहे हैं. Hmm. टुडे there's a new trend that a lot of central banks have started accumulating gold as a reserve, right? So gold एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न इक्विटी के जैसा तो शायद ना मिले, राइट, बट इन द लॉन्गर रन शॉर्ट टर्म में होता है. शॉर्ट टर्म में अभी ऑलमोस्ट आज हम बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1.25 लाख पर तोला छू रहा है सोना, राइट. सो दैट इज वेयर गोल्ड इज राइट नाउ. सो पिछले 5 वर्षों में सोने ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, राइट. पर जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो जो ऐसे पैचेस रहते हैं जब इकोनॉमी में बहुत डिस्ट्रेस रहता है, जब आप देखेंगे कि ग्लोबली बहुत टर्बुलेंस रहता है, चीज़ें बहुत अनसर्टेन होती हैं, उस समय पे सोना आप देखोगे कि अच्छा परफॉर्म करेगा. सोने की डिमांड अच्छी रहती है क्योंकि गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ हेजिंग मेटल, राइट. हेजिंग मेटल मतलब वहाँ पर जब बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी कॉन्फिडेंस लोगों का थोड़ा कम होता है, कैश पे भी कम हो जाता है लोगों का कॉन्फिडेंस, तब सोने पर जाते हैं कि भाई सोना तो चला ही जाएगा, सोना तो मेरा हमेशा मेरा एक सेफ्टी की तरह रहेगा ही. सोना हो गया, चांदी हो गया. चांदी इज ऑल्सो अ गुड ऑल्टरनेटिव, सिल्वर इज ऑल्सो अ गुड ऑल्टरनेटिव, राइट. सो गोल्ड वर्सेस सिल्वर की अगर बात करूँ तो सिल्वर एक और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका एटलीस्ट सम इंडस्ट्रियल यूसेज है, कुछ यूसेज है. अब अगर मैं सोने की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूं या सिल्वर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूं, कुछ नहीं होती है. देयर आर वेरी वेग वेज ऑफ कैलकुलेटिंग इट कि भाई इतना सोना माइंड है वर्सेस इतना मनी फ्लो है, उसके हिसाब से हम एक बॉल पार्क या इंडिकेटिव नंबर निकाल लेते हैं सोने के लिए या चांदी के लिए, राइट. बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो कि उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, राइट. वर्सेस लेट्स से मैं इस कप की बात करता हूँ, राइट. आपको पता है इसके अंदर क्या मटेरियल लगा है, इसके अंदर क्या कॉस्टिंग गई है, इसका वैल्यू इतने के आसपास होना चाहिए, राइट. सोने में ऐसा नहीं होता. बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. मैं शेयर सिक्योरिटीज की बात करता हूँ. इट इज इजी, देयर आर फार मोर सोफिस्टिकेटेड वेज ऑफ असर्टेनिंग वैल्यूएशंस ऑफ अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी. लेट्स से मैं एक शेयर की बात करता हूँ, एक कंपनी के शेयर की बात करता हूँ, कोई भी बैंक ले लीजिए या कोई भी और बिजनेस ले लीजिए. बेसिस देयर रेवेन्यू मॉडल्स, बेसिस देयर कैश फ्लो मॉडल्स, आप उसका एक एस्टिमेट कर सकते हो कि उसका वैल्यू क्या होना चाहिए. पर सोने का क्या वैल्यूएशन कैलकुलेट करोगे आप, राइट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेग, राइट. सो मेजरली डिमांड और सप्लाई के ऊपर उसकी प्राइसिंग डिसाइड हो जाती है. तो प्राइस इक्विलिब्रियम जहाँ बन रहा है उस तरीके से उसका प्राइस डिस्कवरी हो जाता है. तो सोना और चांदी इस तरीके से काम करता है. इट्स अ गुड, इट हैज़, अब अगर मैं बोलूँ शायद 5 साल पहले अगर आप मुझे ये सवाल पूछते तो शायद मेरा जवाब ना होता था. ना मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बट द वे थिंग्स आर नाउ मूविंग, आप टैक्टिकली आफ्टर कोविड एंड स्पेशली इन द लास्ट 1 year, 1.5 years, जिस तरीके से इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ गई है, जब there's a lot of tariffs and all the geopolitics. Correct. So there's a lot of nationalist fervor right now. हर country अपने बारे में सोच रही है आज की तारीख में globally, right? So most of these guys are purely looking at hedging their bets. तो सोना becomes a natural inclination point and वहाँ पर आकर लोग इन्वेस्ट करते हैं. तो सोना आज की तारीख में भी अगर मैं देखूँ तो जब तक these central banks will keep supporting gold as a preferred reserve component, तो आपका सोना चलता रहेगा. देख लीजिए आप सोना अभी क्या सोना, उसका और कोई लॉजिक है? और कोई लॉजिक तो मुझे लगता नहीं है. So मेरी बुद्धि यहीं तक है कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कोई उसका हाल फिलहाल तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चल रहा है. सेंट्रल बैंक्स आर डिमांडिंग इट एंड जो भी अवेलेबल सोना है वो इट्स गोइंग एट अ प्रीमियम. जहाँ भी अवेलेबल है, so it's going at a premium. Okay. Yeah. So there's one more thing, called real estate investment trust. So what's that? So real estate investments जो होते हैं, real estate is actually investing in land in your built up structures. तो उसको real estate कहते हैं. So real estate investment trust जो होता है, it's financialization of a physical asset. Okay. आपका रियल एस्टेट तो फिजिकल है ना. ये हम लोग जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं,
इट्स अ फिजिकल सेटअप, Yeah. राइट, यू कैन टच एंड फील इट, Mhm. राइट. आप म्यूचुअल फंड को टच एंड फील कर सकते हो, No. आप गोल्ड को टच एंड फील कर सकते हो, Yes. म्यूचुअल फंड को, No. सिक्योरिटी को, No. एफडी को, No. दीज आर ऑल फाइनेंशियल एसेट्स, Yeah. बट दिस इज अ फिजिकल एसेट. Hmm. तो यूजुअली एक चीज बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान में क्या होता है, जो चीज दिखती है ना वो चीज बिकती है. Right. सोना बिकेगा, दिखता है, यू कैन टच एंड फील इट. जमीन दिख रही है भैया, जमीन है सामने, बिकेगी. फ्लैट दिख रहा है, बिकेगा. टैंजिबल है, बिकेगा, राइट. पर फिनेंशियल एसेट्स टैंजिबल नहीं है ना, तो वो नहीं बिकते. पर फिनेंशियल एसेट्स वर्सेस फिजिकल एसेट्स में एक डिफरेंस ये होता है कि जितने फिजिकल एसेट्स होते हैं यूजुअली, स्पेशली लैंड और रियल एस्टेट की जब हम बात करें, तो इसको लिक्विडेट करने में आपको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आपको बहुत मोल भाव करना पड़ेगा, बेचने खुद जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अपने बायर्स को, बायर्स से डिस्कशन करने पड़ेंगे. सो जब भी आप ऐसा कुछ करते हो, यू शुड अंडरस्टैंड कि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा उस एसेट को लिक्विडेट होने के लिए. हो सकता है समय ज़्यादा लग जाए, हो सकता है जल्दी भी बिक जाए, राइट. और मोल भाव अच्छा चलेगा, तो आप जिस रेट पे तोड़ना चाहो उस चीज़ को, उस रेट, मतलब आप जिस रेट पे छोड़ना चाहो उस चीज़ को, उस रेट पे वो एसेट आपका टूटेगा. इस चीज़ को अगर मैं अवॉइड कर दूं, इसको फाइनेंशियलाइज करके, कि मैंने कई लोगों से पैसा लिया और मैंने जाके कुछ रियल एस्टेट परचेज कर लिया. जैसे ये स्टूडियो था, इसका वैल्यू 1 करोड़ है, ठीक है. मैंने 10 लोगों से 10-10 लाख रुपए लिए और मैंने इस स्टूडियो में लगा दिया. उनको मैंने यूनिट से शो कर दिया, मैंने ट्रस्ट बनाया और उसमें मैंने यूनिट से शो कर दिया. अब सब लोग पार्ट ओनर्स हो गए इसके. तो जो मेरा ट्रस्ट है एक्चुअली ओनर इस स्टूडियो का वो है, और बाकी सब लोग इसके पार्ट ओनर्स हो गए. सो इसको मैंने फाइनेंशियलाइज कर दिया इस एसेट को. So this is what is called as, this is just a very crude example of explaining how a REIT would work. Right? Sophisticated instrument है again, it's quite complicated structure. Right? But इस तरीके से एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वर्क करता है, और इस तरीके से एक ट्रस्ट बनाकर आप शायद लेट्स से आज की तारीख में अगर मैं बात करूं कि आपका सीपी में 12 खंबा में मुझे एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लेना है, राइट, जिसका वैल्यू शायद 150 करोड़ रुपए है ना. तो एक आम नागरिक जाकर उसको नहीं खरीद पाएगा. 1 करोड़ रुपया उसके पास जेब में है, 1 करोड़ में वो 150 करोड़ की चीज नहीं खरीद पाएगा. पर ऐसे 150 लोग मिलकर 1-1 करोड़ लगाकर बन जाता है एक ट्रस्ट. उसके बाद में वो जाकर उसको खरीद सकते हैं, राइट. और उसका एक मिनिमम लॉक इन होता है जिस तब तक आप निकाल नहीं सकते. उसके बाद में जो भी अप्रिसिएशंस होते हैं उसका वैल्यू आपको मिल जाता है. कुछ रेंटल यील्ड्स होते हैं तो वो आपको डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर आपको मिल these are basically the returns you get after. These are the returns that you get. जो भी कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है पोस्ट एक्सपेंसेस, वो आपको रिटर्न कर देते हैं इन्वेस्टर्स को. तो रियल एस्टेट तो दिल्ली जैसी जगहों में तो इट्स बूमिंग आई थिंक. सी रियल एस्टेट अगेन, ये जो जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, रियल एस्टेट उनमें से बहुत सिक्लिकल होता है. इट डजंट कंटिन्यूअसली गो अप, राइट. कुछ समय चलता है, फिर थोड़े दिन ठहर जाएगा, कंसोलिडेट होगा, फिर चलेगा. So it's booming. Post COVID आप देखेंगे, it's a new phenomenon. Real estate has picked up quite a bit, right? मतलब ये बहुत pervasive रहा है, ये जो appreciation हो रहा है पिछले 4-5 सालों में. Rents तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. That is exactly a function of how it's because there is demand, right? Yeah. तो अगर demand नहीं होती तो rent नहीं होते. Right. Okay, so do you like what other investment options would you suggest rather than all these that we discussed? See, there are various ways of looking at investments. आपको बहुत complicate नहीं करना चाहिए चीज़ों को. And it's an interesting question. बाकी क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नई चीज़ों को they keep looking after. They want to explore, right? New assets, क्या नए आ रहे हैं. मेरे हिसाब से आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस जगह पर मैं इन्वेस्ट करूं, जहां पर बहुत स्टेबल तरीके से मैं पैसा बना सकता हूँ. तो जो बहुत ट्रेडिशनल तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, वो हो गया एक डेट मतलब जो भी डेट को फिक्स्ड इनकम भी कहा जाता है. जो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट मिले आपको, जिस भी इंस्ट्रूमेंट्स के, बॉन्ड्स हो गए, एफडीज हो गई, डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, तो इनके ऊपर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड ब्याज मिलता है. तो ये डेट हो गया. यहाँ पे आप सेफ्टी के लिए जितना पैसा है वो डाल दो. ग्रोथ के लिए
You can have a look at equities as an option. You can have a look at real estate as an option. You can have a look at gold as an option, silver as an option. बाकी कुछ commodities हैं जिनका industrial usage है, आप उनको देख सकते हैं. मेरे ख्याल में ये 3-4 assets में आपका पूरा निकल आता है, और बाकी आप अपना ध्यान दीजिए अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जो कि निकलेंगे, आएंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कुछ समय कि मेरा पैसा बहुत अच्छा बन जाएगा इसमें, और फिर उसके बाद में कई बार आते हैं. और अब जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी कुछ पूछा था, तो क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं, दोज आर अगेन यू नो वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. सो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका अप्रिसिएशन भी बहुत डिस्प्रपोर्शनेट रहा है. तो अगेन दैट इज ऑल्सो आई बिलीव वो पूरा डिमांड सप्लाई तो क्या बोलूँ, अल्टीमेटली आई फील दैट वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्पेक्यूलेटिव इन नेचर है, राइट. तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि बहुत सतर्क रहकर अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत सतर्क रहकर जाइए. पहली बात तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में जाइए मत, राइट, जिनका कोई रेगुलेटरी बैकिंग नहीं है, राइट. पैसा बन जाएगा, पैसा बनता दिखेगा आपको, बट आई थिंक सो द फिलॉसफी इज नॉट बैड. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर वो पूरा वर्क करता है. इट्स नॉट अ बैड. सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ क्रिप्टेड लेजर, जिसके तरीके से पूरा आपका जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, सो दोज आर ब्लॉकचेन बैक्ड. तो क्रिप्टेड लेजर है जिसपे आपका सारा ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो. सो इट्स नॉट अ बैड, इट्स अ ग्रेट टेक्नोलॉजी रादर, बट इट्स अ वेरी क्रिप्टेड एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी. पर उसके बेसिस पे आप एक करेंसी बना दें जिसका कोई रेगुलेटरी बैकिंग ना हो, तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें सतर्क रहना चाहिए. ये कुछ और एसेट्स होते हैं, पर you should not be going for these. There's a lot of risk in it. There's a lot of risk in it. Okay, so lastly, I would, like to ask you to give one message to, our viewers related to investment, and like whatever you feel saying to them. एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगा वो ये रहेगा कि आप बिल्कुल from the day you're earning, start saving. Point number 1. Right. सबसे पहले सेव करना शुरू करिए, और सेव करके अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाइए, एक बकेट बनाइए जहाँ पर एक इमरजेंसी का पैसा आप रखो सबसे पहले. उसके बाद में आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचिए, अपने गोल्स को सोचिए, गोल्स के अनुसार टाइम बकेटिंग करिए पैसों की, कि अगले 5 साल तक मुझे ये पैसे को नहीं टच करना है, अगले 10 सालों तक ये गोल है और इस पैसे को टच नहीं करना है, अगले 15 सालों तक ये गोल है. और फिर ये सब करने के बाद में एक लास्ट बकेट रखिए जो सबसे बड़ी होनी चाहिए आपकी, विच इज़ योर रिटायरमेंट बकेट. एंड दैट रिटायरमेंट बकेट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि महंगाई आ जाए, इन्फ्लेशन को पूरा कंसिडर करने के बाद में मेरे पास इतना पैसा हो कि उस पैसे को जब मैं काम ना करूं तो वो पैसा मुझे काम आए. So that is how you should be planning. और अगर बहुत complicated लगती हैं ये सब चीज़ें, because it is complicated, right? It is at times this could be really overwhelming. So एक अच्छे एडवाइजर को ढूंढिए और उनके साथ में इन्वेस्ट करिए. आपके चांसेस ऑफ कमिटिंग एन एरर कम हो जाते हैं. एंड आई थिंक जस्ट stick by your investments. अगर अच्छे क्वालिटी के इन्वेस्टमेंट्स में कर रहे हैं आप, just stick by it. Don't interrupt your compounding a lot, right? Have good amount of risk covers with yourself. अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, फैमिली को कवर करने के लिए अच्छा टर्म प्लान और वो सब ले लीजिए, और चुनकर अच्छे एसेट्स में इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहिए. बीच में मार्केट्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए. दैट इज द बेस्ट way you will be able to accumulate a lot of money in the future, and you'll be able to safeguard your family's interests. Right. So thank you. It was really nice talking to you. Hope Pleasure. to see you again. Pleasure. Thank you very much. Thank you. See you next time. Yeah. दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने मिस्टर अचिंत जैन से फाइनेंशियल प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स लिए. अगर आप अपने पैसे को स्मार्टर तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो इन टिप्स को इम्प्लीमेंट जरूर करें. मैं हूं दृष्णा और आप सुनते रहें इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंस पॉडकास्ट. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और अगर आपके
फाइनेंस से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों तो आज ही हमें कॉल करें 9910919020 या विजिट करें हमारी वेबसाइट niveshforyou.com। कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर इंसाइट्स चाहेंगे। स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एम्पावर करते रहिए।